So 24 hours, so you've done the city tours and more than 1500 kilometers. How does it feel with the kind of euphoria that you get everywhere that you go? Well, to start off, sorry to keep you guys waiting. There were. So, sorry for that. The moment he mentioned 24 hours, I was like, no, we didn't delay it for 24 hours. So, you guys are not waiting for 24 hours. But, yes, to start off, sorry for the delay. And as far as the promotion of the movie is concerned, yes, we have been to 3 different cities, including Mumbai now. And the kind of response what we have got so far is just fantastic. Jalandhar was brilliant, followed by Delhi, former school of Sushant. And I feel we have got very good reception each and everywhere. As far as going through the process is concerned, it's very tough. Frankly speaking, the only good thing, we don't have to walk 1500 kilometers. You have flights and you can take all of that. But yes, a lot of things get delayed because of the weather and everything. But as far as just the promotion is concerned, I'm very happy that I'm part of it. I have time to be part of it. And more than that, hats off to all the film stars, who do it on a regular basis, and they actually do it for 15-20 days before the start of the movie, before the movie gets launched. So I think it's a fantastic effort on their side, and we all need to appreciate it, that the amount of effort they put in, leave getting into the character part, acting and everything, it's just that the amount of effort that is put in to make a movie successful, So आपने reception के बारे में बताया, दिल्ली जलंधर के बारे में, लेकिन आमची मुंबई तो आमची मुंबई है भाई. Hey, Mumbai, you're not doing well, yeah. Come on. Mumbai is a very special place. Hey, one second. Mumbai is a very special place. Captain, hold on. Mumbai, if you see, is a very special place. 2007 World Cup, T20 World Cup, when we won, we came back to Mumbai, and quite a few of us from England, we went to South Africa to play the T20, and once we were coming back, we had won the tournament, we were coming back, and it was almost over 3 months. So, that anxiety of being with the family is there. So, we are about to land, and I think it was very cloudy, it was raining heavily. And we knew that, we had like a march where we were supposed to go from the airport to the stadium. And I told all my friends, what? It seems we'll get an early flight home. Because I thought in the kind of rain, that nothing will happen, we'll be at the airport, we'll be able to catch the flight home to respective places and be off. But I was completely wrong. We just got out of the aircraft. Before immigration, there were people. And when I talk about people, lots of people. I had the trophy in my hand. It was a very heavy trophy. It was the first edition. It must be one of the heaviest trophy. I was holding it in my right hand. We started walking. I had to put it like that. And after a while, I realized it's too heavy to carry. But there's so many people, I couldn't lift it up. So it was like that till we crossed immigration and we boarded the bus. And right from the airport till the Wankhede Stadium, there were people on both the sides of the road, and they were so happy. A lot of them would have missed their flight, but still, the cars were parked, all of them were outside, and they had a smile on their face. That's an amazing feeling, because that was the first time you saw like a swarm of people, and all of them were happy. It was raining, the mobile phones were out, everybody was clicking pictures and everything. So that was the 2007. I don't think I need to talk about 2011. But it's just that, we are a bit late for here. So that whole thing of, Mumbai, it actually slipped. And I was more concerned about, being late for the launch. Come on, guys, let's give it come on, that is awesome, man. So, generally, Neeraj sir makes very real films and all of that, and there is a big responsibility of portraying your life. आपकी जो पूरी life story है इस film के जरिए, आपको कैसे लगता है ये जो amalgamation हुआ है film का और आपकी life का, आप थोड़े से worried हैं, कैसे लग रहा है आपको, क्या feeling है? No, I'm not worried at all. I have confidence in all the crew who has worked in the movie, Neeraj especially, right from the start. The good thing was we were on the same page. Because I've seen quite a few of his movies, and I like how he
puts things on screen. And I think right from the very start, we were clear we don't want to make a movie which, makes me a hero or glamorizes me. It was more about the journey so that people can, relate to it, because we all go through almost the same thing. Okay, everybody doesn't play for India, but at the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. And, it's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. So it's all about that, the small, small things. Yes, people know a lot about me. I played football. I was from a particular school. I got a job with the railways and I moved on and all of that. But what happens in between that is what really, pushes me or transforms me to what actually I am today. So the movie is more about the journey and, how I deal with everything, because I keep saying, be in the present, but the movie in a way will actually show what all happened that actually helped me be in the present, or that taught me to be in the present, and how being in present really helped me. So a brilliant blend इस मूवी के जरिए क्रिकेट एंड अब बॉलीवुड हो रहा है, तो आपको लगता है क्रिकेट को एक अच्छे और ज्यादा ब्राइटर लाइट में दिखाएगा इस फिल्म के जरिए, आपको लगता है? Well, again, It's a religion in it India. will be like telling side, I'm a bit hesitant on that, but as I said, people can easily relate to it, and cricket is a part of the movie. Like how I keep saying, cricket is a part of life. It's not my entire life. In the same way, cricket in this movie is a part of the movie. It's the human feeling and the emotion and everything that's more of the movie in this. So, it's not only cricket. So हमने देखा कि आप प्राइवेट पर्सन हैं, आप आप ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, आप यू आर नॉट वेरी लाउड, आपकी स्टोरी बताई जा रही है इस फिल्म के जरिए, तो आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, to watch your own movie. Movie that's made on you, it's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा, जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? ऐसे बैठा रहूंगा, मैं ऐसे बैठा रहूंगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है, तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीजें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट सर. सो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है, एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने. एंड नीरज तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स. काफी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है. इट स्टिक्स टू द थीम and that's how it gets over. So नीरज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे. आई थिंक इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. और आई फेल्ट जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफी सारे मेरे दोस्त हैं, काफी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफी चीजें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी. मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो
You know, if you can convince him for an interview, you will get a better interview than you know really asking me a question. क्योंकि मैं काफी बार बोल जाऊंगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. बट सो बहुत ही स्पेशल है मुंबई आपके लिए, टीम इंडिया के लिए. एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे मुंबईकरों के लिए जो गैदर्ड है यहाँ पर, समथिंग दैट यू वांट टू से. नहीं लास्ट मतलब टेंशन मत लो, डोंट विला, सस्पेंस बिल्ड हो रहा है भाई, आराम से. सर, one message to all these fans, all these Mumbaikars who have gathered here, sir. I think for me, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई इज वेरी डिफरेंट प्लेस. यू नो हर जगह जब आप जाते हैं, दिल्ली बहुत डिफरेंट है, कोलकाता बहुत डिफरेंट है. यू नो आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं चेन्नई में 8 साल खेला, 8 साल खेला, तो वहाँ के कल्चर को समझ पाया. मुंबई 2005 के बाद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यू नो शूटिंग्स वगैरह में. आई फेल्ट यहाँ का जो कल्चर है वो एंटायरली डिफरेंट है. You know, people are very focused in what they do, and you know the culture is also how they have moved forward in life. You know how they are willing to help each other, but at the same time they are not very intrusive. You know, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जैसे if you are a celebrity आप बाहर जाके घूम भी सकते हो. लोग आएंगे, they'll ask you for pictures, photographs. अगर आप बोलो नहीं नहीं अभी थोड़ा please छोड़ दो, they're happy. Okay, thank you. You know, they'll move on. So I feel that's the essence of Mumbai, and I feel that's something that needs to keep moving forward, keep going forward to the next generation. क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, because मुंबई जहाँ तक ज़मीन की बात है तो फैल नहीं सकता है. पॉपुलेशन फैलेगा, गाड़ियाँ फैलेगी, ट्रैफिक फैलेगा, सब कुछ होगा. So you know that patience level needs to go up, but at the same time you know everything else needs to be there at the same time. Hello sir, my name is Dhruv Verma. My question is for Dhoni sir. Sir, what lesson the game of cricket teaches you? What game of cricket teaches me? You know, it teaches you a very important lesson in life. I feel cricket it's a great leveler. You know, it levels you out. You know, if you're not humble, it teaches you how to be humble. Cricket एक ऐसा गेम है जो फ्लिप ऑफ कॉइन से स्टार्ट होता है. यू नो टॉस के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है, यू डोंट नो हेड आएगा टेल आएगा. क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रांग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है, और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है. यू नो ये ऐसी चीजें हैं जो क्रिकेट में ही होती हैं. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर. और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डील विथ योर इमोशंस, प्रेशर, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती हैं, एंड इट ऑल रिलेट्स टू यू, इट ऑल रिलेट्स टू अस व्हेन इट कम्स टू आवर लाइफ. सो आई फील इट टीचेज यू अ लॉट. अगेन इट इज अ टीम स्पोर्ट, सो अगर आप दूसरे भी टीम स्पोर्ट अगर खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे. बट कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिकेट जैसे गेम में ही होती है. यू नो अगर आप नाउ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, you know I think it has to be taken in a humorous sense. You know DRS की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर लक सेम डिसीजन पे आप आउट भी हो सकते हैं और नॉट आउट भी हो सकते हैं. अगर अंपायर ने आउट दिया है तो आप आउट है, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट है. यू नो तो इट फर्दर एड्स ऑन टू सम ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रिकेट. Hi MS, over here on your right side, behind the cameras. Can you see me? मिस्टर इंडिया नहीं दिख रहे हैं आप. Yep, no problem. My question can be heard. It's Yeah, okay. yeah. Hi, I'm Sumit. MS, my question for you is that before you started playing cricket and you were still an aspiring cricketer and you wanted to get into Team India, where did you see yourself while you were retiring or while you were done playing cricket? Have you already achieved or was something different? Sorry. You'll have to repeat the last part. Okay, so I was saying. सीधा सवाल पूछो ना, आगे का हटाओ, सीधा सवाल जो है सवाल पूछो. सर सीधा सवाल यह है कि हैव यू अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू अचीव फ्रॉम क्रिकेट? यू नो जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा. आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूं, चाहे आज खेलूं, 6 महीने बाद खेलूं या 3 महीने बाद खेलूं. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है. यू नो ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है.
जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज द पर्पस. माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. So it's not about milestone. What it's about is how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. Hello. Good evening, sir. My name is Arminder Kapoor, and you are a global icon. And what makes you move every day? What's your mantra of the day, which keeps you going, motivates you? Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऐसी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती. आसपास इतने सारे मोटिवेशन है. आप खुद अपने आप के मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो. तो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड आई फील फॉर मी कंट्री इज द बिगेस्ट और द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. Hello, Mahi sir. Sir here. Hi sir. Sir इधर. अरे हटना. Sir. First of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation, and. So coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है सर. तो हाँ, और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी. ओके सॉरी. हाँ, तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल. तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहना, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी. ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट. क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे. थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें. ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, सो हमारा मैचेस था. तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए. मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है. तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए. मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है. उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा. तो तुम आगे खेलो. हेलो. My Yes. name is Nishi Jain. Hello, sir. Where is she, Jain? Where is she? Okay, yeah. Straight. Hello, sir. I am Nishi Jain. You live in Mumbai. Who is your favorite Bollywood singer? यार ये बड़ा सिंपल आंसर है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर. Hello. Good evening, Mahi sir. Good evening, Sushant sir. Here.
Mahi sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning six over long off, लॉन्ग ऑन long on. नहीं, जहां तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफकोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका है। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में, वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहां तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहां जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है। क्यों? इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे। एवरी टाइम इट वॉज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना? और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। सो इट वॉज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया। Hello Mahi, this is Rahul, top play card guy. Mahi, this is not a question, actually it is a suggestion. I know some will be some. जरा माइक सर माइक जरा क्लोज रखिए सर, ऐसे। Some people will find it weird, but I want to say to you कि जब भी आप रिटायरमेंट लो तो प्लीज बता के लेना, क्योंकि लास्ट मैच हम ऐसे देखें कि लास्ट टाइम माही खेल रहा है और उस फील के साथ ले, बिल्कुल एडप्टली मत लेना प्लीज। नहीं, अगर बिना बोले लिया तो डेफर्ड लाइफ फिर से मैच चला देंगे। हेलो, हाय MS धोनी एंड सुशांत। मेरा क्वेश्चन सुशांत से है। मेरा नाम रश्मि वर्मा है। आपने MS धोनी का किरदार निभाकर आपने क्या सीखा? इंटेंस क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत इंटेंस। और सर, मैं आपके पास आकर थोड़ा पिक्चर लेना चाहती हूँ। असल मुद्दा ये है, यह क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, और आप जिस तरीके से फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पंक्चुएट किया गया है फिल्म में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो बार बार MS अभी कह रहे हैं, हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो जब हम करते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। हम हमेशा पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, सचमुच खुली आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हाय, नमस्कार, MS अखिलेश हियर फ्रॉम TV24। MS जी, मेरा सवाल आपसे है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पे एक्टर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेटर राजनीति कर रहा है, और राजनेता पॉर्न देख रहा है और पॉर्न कलाकार स्टार बन रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत ज्यादा दे दिए। लाइफ में जब बड़ा हो रहा था तो ऑप्शन कम थे, क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो। 18 साल की उम्र में जब जॉब लग गई तो एक चीज हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट का जॉब मिला है। क्रिकेट अगर खराब भी करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास। आपने अब इतने सारे ऑप्शन देखने हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है,
किस पर्टिकुलर रोल में लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट काफ़ी यूनिटी है, काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जैसा कि आपने बोला। आगे का बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो अभी उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। So I introduced Katrina to a duet song. We love each other. Yes. Okay, and do you guys actually fear aging? Because हमने जो ट्रेलर में देखा है, मतलब ऐसे in real life. Not at all. I loved being aged in this film. I've Yeah, gone he through really 20 to did. 60. We sat for 5 hours of makeup and then we shot for 8 hours. So